रात पूरा 12 बजे तक जब Now, और क्वाड्रिलेटरल स्कूल में चल रहा होगा मैथ्स में? यस सर। समझ में आ रहा ना चैप्टर स्कूल में? आ रहा है? ओके। नाउ वो भले ही ना दें, हमको आपको तैयार करना है अगले लेवल पर। हाई बुक में तो सिखा देता हूँ, तो क्या है कि एग्जाम में नहीं आता ये सब, लेकिन है तो मैं पूरा सिखा देता हूँ। आपका लेवल बढ़ रहा है ना, बुक में है से लेवल तो आपका ही ऊपर हो रहा है दूसरे बच्चों को, और आप सीख भी रहे हो। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि ना समझ पा रहे हो। चलो ये अतली तो आपके फुल मार्क्स हैं। शिवांग, आरुष, मैं तो एक और आधा ही रंग में मेरा पता है बहुत ज़्यादा ही गलती है। चलो now पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। हम लोगों ने 3 डिफरेंट स्टेट्स देख ली थी और उनके डिफरेंसेस भी देख लिए थे कि उनके क्या क्या डिफरेंस है। अब देखिए कुछ fill in the blanks, that is density is highest in density किसमें highest? Solid. सॉलिड। Now that is inter particle space is largest in गैस। these are highly compressible. गैस Gases are. पार्टिकल Highest rate of diffusion is found in Gases. if boundaries are removed, then these and these flows. Gases and गैस liquids. एंड लिक्विड। This is rigid, but सॉलिड। this and this are not rigid. गैसेस एंड लिक्विड्स। Solids are rigid, but gases and liquids are not rigid. That is interparticle force is largest in particles of only vibrate at their Solids. lattice points. सॉलिड। Ordered हाँ arrangement of particles. dash have ordered arrangement of particles. Solid. Now, Force.
particles of 5 numbers. matter are continuously moving air between them and each other. अब देखो particles of exert pressure on walls. Articles of Question number 4, 10.4. Particles of matter are continuously moving, have space between them and attract each other. Huh? Particles of gases exert pressure on walls. gases. 10 का क्या है? Hmm? 10. Particles of matter are continuously moving, have space between them and attract each other. और एक दूसरे को attract करते सर हैं. 11th वाले में लिक्विड नहीं आएगा? Hmm? 7 number. Into particle force is largest. सर 11th वाले में लिक्विड नहीं आएगा? लिक्विड्स तो वेट करते हैं. ठीक है. लिक्विड भी प्रेशर करते हैं. चलो. Have definite volume, but no definite shape. Definite shape. Gas, liquids. अब आगे देखिए. Spontaneous intermixing of particles is called Spontaneous मतलब? अपने आप मिक्स हो जाना. If pressure is applied and volume decreases, this property is called energy contained by particle due to their motion is called Kinetic energy. if force is applied and shape of substance does not change, this property is called Rigidity. mass contained per unit volume is called Density. Per unit volume. Density क्या है?
conversion of solid to liquid Melting or is fusion. called Conversion of solid to melting liquid. or Fusion. fusion. Solid से liquid melting. Conversion of Conversion of liquid liquid to gas is called vaporization. vaporization is of two types. Boiling and Evaporation evaporation. and boiling. Evaporation, boiling. Evaporation and boiling. Boiling. Means Surface vaporization is called. इसे कहाँ लिखना है? ऐसे इतने सारे सवाल. ओपी में. Bulk vaporization is called. Bulk vaporization. Boiling. Surface Melting point of ice 0 degrees. is 0 Celsius. urea 133 degree Celsius. and iron. 1538 degree Celsius. 138 degrees Celsius. 153. इसके सिर्फ ब्लैंक्स फिल करो. गैस फिल करना है. करना कहाँ पे? Science of Science separate. चलो इसको मैं घर में रख करूँगा. या फिर शायद. चलो. 14. If pressure is applied and what? It is called compressibility. सिर्फ आपको आंसर लिखना है. और इधर रखो थोड़ा और बोल देगा आराम से. हाँ? जल्दी नहीं. इस पे आइए. Exercise. Choose the correct option. The primary difference between solids and liquids वीडियो ऑन कर दीजिए. Is that the constituent particles are? तो solid और liquid के बीच में क्या difference है? Closely packed in solids while these are stationary in liquid. Far apart in solid, fixed in liquid. Always moving in solid, closely packed in solids and move past each other in liquid. कौन सा आंसर करेक्ट है? बताओ पहले. हिम्मत बताइए. फोर्थ. पीछे बैठ जाओ इनके साथ. आरुष के साथ इनको बैठा नहीं ना. देखो बुक के साथ रेफर करो. तो पहले का आंसर है कहाँ पे? फोर्थ. सेकंड देखो क्योंकि फोर्थ में क्या है? सॉलिड्स में क्या होता है? हाँ? मुझे क्लोजली Chapter 7. पैक्ड इन सॉलिड्स और मूव पास्ट ईच अदर. एक दूसरे के सामने से गुजरते हुए मिल गया. इन लिक्विड. आगे देखो सामने से गुजरने को कहते हैं मूव पास्ट या मार्च पास्ट. 26 जनवरी को प्रेसिडेंट के सामने से लोग गुजरते हैं इसलिए उसे मार्च पास्ट. मार्च पास मतलब लोग मार्च सामने से गुजर चलते हुए जाए. जाते हैं और उन्हीं के Move पास past निकल जाते हैं. हाँ? So past का मतलब समझते हैं. पास्ट का मतलब है सामने से गुजर जाना. तो मार्च मतलब सामने से. पास्ट हाँ मार्च का मतलब मार्चिंग करते हुए गुजर जाना. और वो Solution पास से liquid. गुजरे कि मेरा हाल तक न पूछा. मुझको ये क्या खबर थी कि वो दूर जाके रोए ना. सेकंड क्वेश्चन. Which of the following statements are true? Correct the false statement. जो गलत है उनको सही करना है और इनमें से जो सही है उसे सही बोल देना है. Melting ice into water is example of transformation. True है. ठीक है. True को कुछ नहीं करना है. पहले का लिखो true और जो गलत है उसको सही करके बताना So है. दूसरा भी सही है. मेल्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल. जब मेल्टिंग होती है तो क्या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम हो जाता Yes है? sir. ये भी ट्रू है. पार्टिकल अट्रैक्शन मेल्टिंग के टाइम सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप True. फिक्स्ड वॉल्यूम. True true.
फोर्थ देखो, द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रांग एंड इंटर पार्टिकल स्पेस आर वेरी स्मॉल। सर इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन क्या होता है? आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी ट्रू है। सारे नहीं, अगला भी है, हाँ आगे दो भी और होगा। हैं। When we heat camphor in one corner, the fragrance reaches all corners of room. ट्रू। को जलाते तो दूसरी तरफ True. फैलता होगा। On heating, we are adding energy to camphor and the energy is released. क्या एनर्जी रिलीज होती है स्मेल के तौर पर? नो। एनर्जी सिर्फ उनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ती है, फिर वो कैम्फर के पार्टिकल हमारी नोज में जाते हैं और वो स्मेल होता है। एनर्जी में कोई स्मेल नहीं होती। एनर्जी सर लेटेंट हीट क्या होता है? सुनो इस चीज को, लेटेंट हीट अभी बता रहा हूँ। मैं देखो सुना- क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में गलती कहाँ है? कह रहा एनर्जी है, कैम्फर यानी कपूर, जो घर में कपूर जलाया जाता है ना, जब पूजा की जाती सफेद सफेद होता है, उसमें आग लग जाती है, उसको कपूर कहते हैं। तो वो लोग जब उसको जलाया जाता है तो क्या एनर्जी का स्मेल होता है हमारी नाक में? No, नहीं, sir. तो कैम्फर ही रिलीज हो जाता है। तो अब इसको करेक्ट करो, दैट इज 6 को कैसे करेक्ट करोगे? सो ये फॉल्स है, पहले तो ये लिखो ये फॉल्स है। स्टेटमेंट इज So energy is used to sublimate. Sublimate का तुम लोग मतलब जानते हो? सॉलिड से गैस। सॉलिड से डायरेक्ट गैस। डायरेक्टली गैस बदल जाना, उसको सब्लिमेट कहते हैं। सब्लिमेट द कैम्फर, कैम्फर का मतलब है कपूर, फ्रॉम सॉलिड टू गैस में बदल जाता है। एंड दैट इज नाउ फ्रॉम सॉलिड टू गैस। gaseous particle of camphor, particles of camphor causes smell, उससे स्मेल आती ना कि एनर्जी से, causes smell। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब एक नई चीज समझो, ये मुझे बताओ कि ये आइस है और आइस के पास थर्मोमीटर रख दो, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, 0 डिग्री, तुमको मालूम है आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है। और इसको गर्म करने लग जाओ और गर्म करने के 10 मिनट बाद तुम देखोगे कि अब आइस इतनी बची है और बाकी पानी बच गया है। तो बताओ, ऐसा मैंने 10 मिनट्स बाद देखा। अब मुझे बताओ 10 मिनट बाद हुआ है, कितने मिनट बाद? 10 मिनट्स। तो बोलो अभी थर्मोमीटर में टेम्परेचर ज्यादा होगा कि बाद में? बाद में। बाद में वो गर्म हो गया तो पानी भी गर्म नहीं होगा। बताओ। बाद में। मुझे तो ये बाद सिर्फ में, सही बोला है। मुझे तो बाद में लग रहा है। इसकी भी तो सुनो, शिवांक ने कहा है कि बोथ द टाइम टेम्परेचर इज सेम। ये बहुत बड़ी Same. बात है, 8th में हो के ये ऐसा बोल रहा है, क्योंकि इसी का क्वेश्चन भी लेटेंट हीट ही है। तो अब इसने पूरी बात बता दी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है? ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब उसकी मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो ये उसे ट्रांजिशन फेज कहते हैं। वॉट एवर एनर्जी इज सप्लाइड इज टोटली यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स एंड नॉट फॉर रेजिंग इट्स टेम्परेचर। अगर उसमें एक भी बर्फ का टुकड़ा पड़ा है, जब सारा खत्म हो जाएगा तब रेज होगा टेम्परेचर, और नहीं तब जब तक एक भी बर्फ का टुकड़ा पड़ा है सारी एनर्जी उस पर टूट पड़ेगी उसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। इस चीज को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेज। कौन सी स्टेज? Transition या stage। तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, उसका टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ता, इसीलिए उस टेम्परेचर को हम लोग बार बार लिखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। लिखती हो कि नहीं लिखती? हाँ बोलो। सर तो फिर अगर हम ऐसे अगर लेते पूरी आइस जब तक खत्म नहीं होती और उसको वापस से ठंडी जगह पे रख देते तो वापस से फ्रीज हो जाएगा वो पूरा। अभी हम इस चीज को और बढ़ाएंगे, फिर आपका क्वेश्चन देंगे, लेकिन उससे पहले एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये मुझे बताओ कि ये उबलता हुआ पानी है उबलता हुआ पानी और इसको मैंने चढ़ा दिया गैस पर और 30 मिनट हो गए। 30 मिनट्स। हाँ, और 30 उबलते मिनट हुए 30 बाद मिनट्स। अब ये पानी इतना बच गया है लेकिन ये उबल रहा है। तो बताओ थर्मामीटर में अभी टेम्परेचर ज्यादा होगा या 30 मिनट बाद? दोनों टाइम पे सेम रहेगा। भी रहेगा। क्या इस टाइम क्या टेम्परेचर होगा?
100 डिग्री सेल्सियस, और उस टाइम 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री से तो जो तुमने इसको हीट दी वो एक्स्ट्रा हीट गई कहाँ? स्टीम पे। यानी वो इसके बॉन्ड्स को तोड़कर इसको स्टीम में बदलने में चली गई। सो वॉट एवर हीट इज गिवन ड्यूरिंग किस स्टेज में? ट्रांजिशन स्टेट, यानी संक्रमण की अवस्था, उसे क्या कहते हैं? संक्रमण। संक्रमण की अवस्था। तो लिखो ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, जब इस एक स्टेट से दूसरे में बदलते हैं, वॉट एवर हीट इज सप्लाइड is totally utilized for breaking the bonds and not for raising its temperature, and that heat is called latent heat or hidden heat और गुप्त ऊष्मा। उसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। गुप्त है, कहाँ चली गई पता ही नहीं चल रहा। देखो इस चीज में समझ में आ गई बात? ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, whatever heat is supplied, सेंटेंस पूरा करो आशीष। Is get utilized. Is used for breaking bonds and then converted to is totally utilized, देखो इसे मालूम है, बताता नहीं कुछ। totally utilized for breaking bonds between them and not, सेंटेंस पूरा करो सोनल, and not for raising temperature. not for raising temperature। सर तो मैं ऐसा सेंसेशन की फील होता है जब हम आइस को टच करते हैं तो हमें ज़्यादा ठंडा लगता है, लेकिन जब इस वाले को टच करेंगे तो हमें कम ठंडा लगेगा। उन दोनों का टेम्परेचर वही, लेकिन जब आइस को वो, और फिर आगे की बात है, पहले इतना लिखो, यहाँ से तो बहुत कुछ आगे सीखना है। अभी तुम हिडन हीट सीखो, फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सीखो, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सीखो, फिर वहाँ पर पहुँचेंगे। अभी इनका भी एक क्वेश्चन पेंडिंग है। नाउ नॉट फॉर रेजिंग टेम्परेचर, दिस हीट इज कॉल्ड, उस हीट को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो इस समय जो इसको एक्स्ट्रा हीट दी गई, उस हीट को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे क्या कहेंगे? जब मेल्टिंग हो रही है तो कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब वेपराइजेशन हो रहा है तब उसे क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये दो तरीके की होती है, जैसा प्रोसेस वैसी लेटेंट। सही है, चलो अब देखो कि अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट आंसर विद जस्टिफिकेशन। इफ यू कुड रिमूव ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए चेयर, व्हाट वुड हैपन? अगर तुम सभी इस चेयर के या डेस्क के प्रत्युष पार्टिकल्स को हटा दो तो क्या होगा? कुछ नहीं रहेगा। हैं? नथिंग ऑन द चेयर बिखर विल जाएगा। रिमेन। सर कुछ रहेगा। तो कुछ आप बच्चे- जरा देखो, नथिंग ऑन द चेयर विल रिमेन। चेयर विल weigh less due to loss of particle, nothing of the chair, Third. कुछ भी बचेगा ही नहीं। थर्ड, तो इसका थर्ड आंसर है। क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। आप तो सब कुछ तो पार्टिकल से ही बना हुआ सर है। तो डिफरेंट Everything is made up of matter. डिफरेंट अरेंजमेंट। वही है, और सब चीज बनी किससे? पार्टिकल से। अगर तुम पार्टिकल ही सारे हटा लोगे तो नथिंग ऑफ द चेयर इज लेफ्ट। अगला सवाल देखिए, व्हाई डू गैसेस मिक्स इजीली whereas solid do not? तो gaseous particles are wide apart। कैसे होते हैं बोलो? मेड अप। Wide apart and have negligible force of attraction between particles। क्या उनके बीच ज्यादा फोर्स होता है? ये कम। गैस तो बहुत दूर है, तो उनका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम। गैसेस पार्टिकल्स Force of attraction between particles। These particles, ये particles क्या होते हैं? Move very fast randomly in all the direction। तो क्या होगा?
पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट, क्या बहुत तेज मूव करते हैं? और क्या रैंडमली मूव करते हैं कि उनकी कोई निश्चित दिशा होती है? रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन, जहां उनकी मर्जी करे मूव कर रहे हैं। एंड सोन इंटरमिक्सेस विद ईच अदर, और खुद ही अपने आप आपस में मिल जाते हैं। यही तो होता है। तो वो बहुत दूर होते हैं। दूर है लेकिन आपस में चल फिर रहे हैं और आपस में मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि उनका मूवमेंट होता जाता है। और सॉलिड वाले तो सिर्फ हिल रहे हैं, तो क्या वो मिक्स हो पाएंगे? वो लैटिस ही नहीं छोड़ पा रहे तो मिल पाएंगे क्या? जब से मैंने सोडियम की बॉल खरीदी है तब से ग्रीन पार्टिकल यही है। इसको करीब मुझे 17 साल हो गए, हट ही नहीं रहा यहाँ से ग्रीन। और हिल जाता तो हट जाता, मूव ही कर जाए कम से कम, क्या करना। तो ये क्या होता है? मूव इन ऑल द डायरेक्शन एंड डिफ्यूज वेरी फास्ट। और क्या कर जाते हैं? डिफ्यूज कर जाते हैं बहुत जल्दी। डिफ्यूज वेरी फास्ट। ये तो बात हो गई गैस क्यों जल्दी मिल जाती है। अब सॉलिड गैसेस पार्टिकल आर वाइड अपार्ट, बहुत दूर दूर होते हैं। वाइड का मतलब क्या होता है? दूर होते हैं। और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। Solid particles are locked at their lattice points. They only vibrate and cannot leave their positions, so they cannot diffuse or intermix. Because And they do not have enough space also. solids पहली बात अपनी पोजीशन ही छोड़ दें, लिक्विड की तरह ही हो जाए, लेकिन वो तो लॉक है ना अपनी पोजीशन। अरे हाँ, जगह नहीं Solid रही। particles क्या होते हैं? Long that they Are bonded. कैसे होते हैं? bonded. At their lattice points. These cannot leave. छोड़ नहीं सकते अपनी पोजीशन। Their positions and cannot move freely. So do not intermix, इसलिए मिक्स भी नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखिए। When spilled on the table, milk in a glass tumbler flows and spreads out, but the glass tumbler stays in the same shape. आशीष, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि liquids have less. बोलो। property of Which exist in and not exist in. इसलिए ग्लास नहीं बहता लेकिन उसमें रखा हुआ दूध बह जाता है। ग्लास को लुढ़का दो, दूध बह गया ग्लास में। नहीं तो ग्लास भी बह के धीरे धीरे नीचे गिर जाए, क्या बहता है? उसको फिर बहुत हीट करना पड़ेगा। ग्लास कैसे बनता उसको है? तो फिर बहुत ज्यादा क्या? हीट करना पड़ेगा। लिक्विड बन जाएगा ना उसके हाँ, बाद। बनता रेत से। उसके बाद तो एकदम लिक्विड रेत पिघला दो गिरने ग्लास में। लगेगा। हाँ हाँ, जैसा तो- रेत की जो रेत है ना, यही ग्लास इंडस्ट्री है उसी के पास। वो सब रेत ले जाती है पिघला के ग्लास में। उसके अंदर एक साथ केमिकल भी ऐड करते हैं ना, अगर थोड़ा पिघलाओगे तो क्वार्ट्ज बनेगा, और ज्यादा पिघला दोगे तो ग्लास बन जाएगा। इसीलिए क्वार्ट्ज पाया जाता है कि राजस्थान में इतना सारा। सही है, बहुत क्वार्ट्ज सब मोती में, उसमें अलग अलग मेटल डालो तो अलग अलग वो भी हैं। मेरे पास बहुत सारा क्वार्ट्ज पड़ा है। क्वार्ट्ज होता है, हमारे पास भी एक क्वार्ट्ज है, तुम्हें दिखाई देता हूँ। बस रॉ क्वार्ट्ज कर रखते हैं। इसी को और कर दिया जाए, क्वार्ट्ज है तो ग्लास बन जाए। ये रेत है, बस रेत को पिघला दिया, रेत पिघला दिया क्वार्ट्ज में। इसे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं कितने रेट में इतना सब बनने के लिए। क्या? उतनी रेत अरे मैं लिखा तो मैं देखा भी नहीं। कितने वैसे बहुत टाइम लगता है। हैं? हाँ क्या? ये ग्लास तो बनने में क्वार्ट्ज ऐसे से घड़ी बन जाती है, सबसे बड़ी कंपनी क्वार्ट्ज की है। इसी को यहाँ मारो ऐसे, इसमें करंट पैदा हो जाए, उसी को तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। नॉट मूव फ्रीली। वाओ, काफी ये रेत है, बर्फ जैसा लग रहा है। एंड कैन नॉट इसी को क्वार्ट्ज कहते हैं। इसी को ऐसे जमीन पे हल्का सा मारो, करंट पैदा हो कैन जाए। नॉट सर कितने क्वार्ट्ज टेम्पर नहीं हो पाएगा। सर कितने तभी तो टेम्पर घड़ी वाले ऐसे क्वार्ट्ज वाली घड़ी घुमाते रहते हैं, उनकी घड़ी चार्ज होती रहती सर कितने टेम्परेचर पे होते हैं? है। हैं? कितने टेम्परेचर पे बनते हैं? ये 2800 डिग्री सेल्सियस। हाँ,
बहुत टाइम भी लगता है। अब तुमको समझ में आ गया ना क्वार्ट्स? सर एक बार दिखा दो। सर तुमने फॉर्मेशन देखा नहीं? तो कौन तुम लोगों ने भी नहीं देखा क्या? देख ली देख लिया तो मुझे मैंने भी देखा कितना ना। टाइम लगता है? बिल्कुल क्लास लग रहा है सर इसको फॉर्मेशन हाँ? कितना टाइम लगता सर है? मिट्टी से बन जाए। मिट्टी नहीं है, मतलब SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 है ये, SiO2 सिलिकॉन। SiO2 SI तो फिर सिलिकॉन है और O2 सर सैंड, सर सैंड को ही तो पिघला के बनता है। और क्या SiO2 है साइन का फार्मूला। ठीक है, अब आगे की बात करो। मिक्स करना होता है। चलो नेक्स्ट बात करिए, सोनल। वहां ध्यान मत दीजिए, बटरी दबाएगा तो आएगा। 5th क्वेश्चन पे ध्यान दो। 5th क्वेश्चन। जब उन्होंने तुमको अपनी बर्थडे पे नहीं बुलाया तो तुम क्यों बुलाओगे? ठीक है, 5th क्वेश्चन पे ध्यान दो। वो यही तो बोल रहे, मैं अपने बर्थडे पे तुम्हें क्यों बुलाऊं? अच्छा ये बात, तो फिर बर्थडे की बात ही खत्म हो गई थी। अब यहाँ देखो भाई, सबको अपने यहाँ पेस्ट्री बचानी है। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ऐसे ही दुनिया चलती है, कोई किसी को बुलाता है कोई। चलो भाई ठीक। सर जब दो पार्ट्स आपस में रगड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो भी पैदा करते हैं तो चिंगारी। चिंगारी पैदा करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज व्हेन स्पिल्ड ऑन टेबल। तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड लिक्विड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। fluidity. It flows freely when boundaries are it flows freely removed. इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? आगे की बात देखो। Now, while solids क्या होते हैं? Solids are rigid. वो कैसे होते हैं? सल्फेट। रिजिड होते हैं, वो अपना शेप बदलते ही नहीं है। So cannot flow. This is the reason. This is the reason spilled milk, solid ठीक है, fall down from table, but glass do not. are That spilled milk cannot fall down from table, but glass remains there. Glass थोड़ी ना गिरता है। flow. This is the reason. 6th क्वेश्चन देखें। Represent diagrammatically the change in arrangement of particles. जब आइस मेल्ट करती है, वाटर वेपर बनती है, तो क्या काम होता होगा? When ice melts into water, then जो ordered arrangement of particle है, ठीक है, डिसअपियर। क्या वो अपीयर होता है कि डिसअपियर हो जाता है? एंड पार्टिकल्स फ्रीली मूव विद इन द सरफेस। अंदर अंदर वो क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे। विद इन द सरफेस। चलो अगला सवाल देखो। अभी काम पूरा नहीं हुआ है। कह रहा है कि आइस अभी वाटर वेपर बनेगी। अभी तो मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, बात पूरी की ही नहीं। पहले आइस किस में बनेगी? Ice water. और वाटर के बाद Water is gas. वाटर वेपर। तो अभी मैंने पूरी बात नहीं की ना। अभी तो आइस से वाटर की बात की है। बोलो बात सही है? अभी तो सिर्फ विद इन द सरफेस है। अब आगे क्या होगा? वाटर वेपर बन जाएगा। When
वाटर इज फर्दर हीटेड, देन पार्टिकल क्या करते होंगे शिवांग? गैस बन जाता है. Then particles of liquid leave the surface. सरफेस ही छोड़ देते हैं और स्टार्ट मूविंग फ्रीली. एंड एस्केप टू एटमॉस्फेयर, और कहाँ चले जाते हैं? एटमॉस्फेयर. एंड एस्केप, भाग जाते हैं. एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड बना देते हैं. और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कन्वर्टेड इनटू, वाटर. नहीं, गैस. गैस. अब गैस करना क्या है सर, हम्म, अगर हम गैस को गर्म करें तो जब तुम सॉलिड की बात करोगे बिल्कुल एक दूसरे के नीचे ध्यान से पार्टिकल बनाना, ऑर्डर्ड होना चाहिए. ऐसे बना लो, और बल्कि इसको भी हटा दो. ये ऐसे पार्टिकल कर दो, ये गैस है, और इसको ऐसे कर दो. सही है. और अगले स्टेप में क्या करो? ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बस. तो ये दूसरी स्टेज. और तीसरी स्टेज में आप कैसे करें कि इसके ऊपर ऐसे कर दें. सही. सर, अगर हम इस गैस को और गर्म करें तो क्या होगा? फिर प्लाज्मा स्टेट, सन की स्टेट. 5 स्टेट ऑफ मैटर तो तुम लोगों ने पढ़ रखी है ना? क्यों? 3 तो ये और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और 5वीं प्लाज्मा स्टेट. नहीं पढ़ी? वो साइंस क्या है? सर लास्ट में 2 नहीं पढ़े. नहीं पढ़े? अच्छा, हमने अभी तक 3 ही कवर किए क्या? आगे देखो तो जब इसमें होगा ही नहीं आपके सिलेबस में. अगला देखो, 7th क्वेश्चन देखिए. अद्वैत, 7th क्वेश्चन क्या है? बताओ इसका आंसर. एल्यूमिनियम का सर सॉलिड जैसा बना दो और ग्लिसरीन का लिक्विड जैसा. नीचे बना हुआ है 4 इसमें है हाँ. क्या? मीथेन गैस. तो इन्हीं में से एक दे दो. 7/1 ड्रॉ ए पिक्चर रिप्रेजेंटिंग यही है, यही कर देना. ये एल्यूमिनियम हो जाएगा सॉलिड के तरीके से. बस नीचे वाला गरम हटा दें जो गरम कर रहा है. ठीक है, तो इसमें एल्यूमिनियम को सॉलिड की तरह दिखा दो. ऐसे दिखा दीजिएगा. जितना अच्छा अरेंजमेंट बना सकते बना दीजिएगा. फिर ऐसे करें. अरे पीछे भी वो तो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है. अगला देखो, सर ये ग्लिसरीन में सर ये आपने ग्लिसरीन लिक्विड होता है. ऐसे ग्लिसरीन रखा हुआ है हमारे पास. वो थोड़ा ग्लाइसी होता है, यानी मीठा, इसलिए उसका नाम ग्लिसरीन है. ग्लूकोज होता है. हाँ, वो छाला होता है ना, उसी में लोग पीते हैं, मुंह में लगाते नहीं छाले में ग्लिसरीन. सभी लोग ग्लूकोज होगा उसमें तभी ग्लिसरीन नाम. हाँ, ग्लिसरीन उसमें दैट इज ग्लाइसीमिया, तो इसीलिए उसका नाम ग्लिसरीन है. ये देखो मीठा मीठा होता है. और कुछ लोग तो इसको जो होता है चेहरे में फेशियल वेशियल के लिए भी, कमल के फूल के उससे इन सब के लिए गुलाब के फूल के साथ लगा के चेहरे का फेशियल करते हैं. ग्लिसरीन. पेडिक्योर, मैनिक्योर बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है. ग्लिसरीन. हार्मफुल नहीं होता. बिल्कुल भी नहीं. तो सही है.
अब आगे देखो, ये तो ग्लिसरीन हो गया आपको जो दिखाया। तीसरा क्या होता है? मीथेन गैस। तो मीथेन गैस कैसी होगी? एक कंटेनर में रख दो, ये मीथेन गैस। मीथेन गैस CH4 होती है। CH4। इसी को CNG भी कहते हैं, इसी को मार्श गैस भी कहते हैं। इसको CNG भी कहते हैं। इसको मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दलदली स्थानों में, सब्जी मंडी में जब सब्जियां सड़ती हैं तो इसी की महक आती है। ये मार्शी एरिया में पाई जाती है। सब्जी मंडी का एक अलग तरीके की स्मेल आती स्वाप है। में भी हाँ? स्वाप स्वयं जमीन पे, इसीलिए इसे मार्शी एरिया में कहते हैं, मार्श गैस। मार्श। इसी से ऑटो चलते हैं, CH4 से। सही है? गाड़ियाँ भी चलती हैं। इसी को हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। अच्छा, इसे क्या पेट्रोल। कहते हैं? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, मीथेन गैस, और इसे क्या कहेंगे? सर ये क्या लिखा है? एल्युमिनियम फॉइल। मार्श गैस। हाँ। सर ये मार्स गैस जो बताया उसके फर्स्ट ऊपर सबसे मीथेन, मीथेन का पूछा। उसके ऊपर ये CH कार्बन 1 और 4 हाइड्रोजन इससे बनती है। ये है CH मीथेन। सर ये ये H4 देखो। को हम क्या बोल सकते हैं? और क्या? ये कार्बन 4 हाइड्रोजन। सही? कार्बन 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 हाइड्रोजन अब देखो, ये LPG है, ब्यूटेन। ग्लिसरीन। इस तरीके से बॉन्डिंग है सर बीच में। ये बॉन्डिंग 9th में है सर। चलो इतनी तुम्हें बात समझाने, हम आगे की बात देखें। चलिए, ये मुझे बताओ कि क्वेश्चन 8 सोनल क्या कह रहा है और इसका जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ कैंडल, इट इज एक्सटिंग्विश्ड। तो कैंडल बुझ गई है, जस्ट एक्सटिंग्विश्ड। It is just extinguished। इसको बुझा दिया गया। वो हवा से क्या खुल जाता है। अब देखो, अब इसके बाद क्या हुआ? आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वैक्स। तो इस कैंडल में सब स्टेट बताओ कौन कौन सी है। मान लीजिए ये कैंडल है और कैंडल अभी अभी बुझी है, अभी कैंडल में तीनों सीट होगी फिर तो क्या तीनों स्टेट हो जाएंगे? यस सर। कैंडल में एक सॉलिड का हो जाएगा। सॉलिड हो जाएगा, जो पिघल और एक पिघल के वैक्स पिघल रहा नीचे आता है है, वो वो लिक्विड हो जाएगा, liquid हो और जो जाता है। ऊपर धुआं उठ जाता है उसके बाद हल्का सा जाता है। उसको फिर ये गैस गैस हो गया, गैस और हो इसके जाएगा। अंदर यहाँ पे जो लिक्विड बचा हुआ है लिक्विड, वो लिक्विड हो गया, और फिर बाकी सॉलिड ही सॉलिड है। और ये तो सॉलिड है। वो जो नीचे पिघल के आ रहा है वो भी लिक्विड है। पिघल गया, वो सॉलिडिफाइड हो गया, वो तो बह कहाँ रहा है। हाँ, वो तो पिघलने के बाद Why सीधा does the चिपक जाता water in है। ocean taste salty even though the salt is not क्या? visible? तो salt क्या होता है? Yes, salt is miscible या mixed हो जाता है वो रिवर्स से Mixed बहते हुए with मिनरल्स। water of ocean वो मिनरल और ये किस वजह से होता है? खा जाती है। फिर बचता है सोडियम। due to property of सर बहुत सारे मिनरल वाले पत्थर हो जाता है, इसकी वजह से हो जाता है। मिनरल के नाम पे NaCl ही है, बस उसमें और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, तो mixed with water वो फिर due मिनरल to के सोडियम property of diffusion. Particles of salt are very tiny and present throughout the water in interparticle space. वो कहाँ present रहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस में, जो Particles खाली of जगह salt. रहता है। देखो, particles of salt is very tiny and present सॉल्ट इज in interparticle space में and not visible to us. लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं देते। Grains of rice and rice flour take the shape of container when placed in different jars. Are the solids or liquid? So, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कल कर देंगे, इतना ही रखो। Bye.
शाइनी एंड ऑफ कर दीजिएगा।